अब हम आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। We went on a journey through different habitats, discussed many plants and animals. In activity 1, we listed objects, plants and animals found in different surroundings. Suppose we stop a while and think which example in our list are living. और अब हम बात करते हैं, कुछ लिविंग होंगे कुछ नॉन लिविंग होंगे, उन सब के बारे में बात करते हैं। Let us think of example from the forest, और फॉरेस्ट में जो एग्जाम्पल थे उन सब के बारे में हम बात करते हैं। Let us think of example from a forest: trees, creepers, small and big animal, birds, snakes, insects, rocks, soil, water, dry leaves, dead animal, mushrooms, moss. Maybe only some of objects that are present in the forest. Which of these are living? इन सब में हमें बात करना है कि लिविंग कौन कौन से हैं, जिसमें से एनिमल्स हो जाएंगे बर्ड, स्नेक, इंसेक्ट, ट्रीज भी लिविंग में आ जाते हैं। नॉन लिविंग आ जाएंगे सॉइल, वाटर, एयर। अब आगे बात करते हैं। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। और हमें एक ग्रुप बनाना है जिसमें लिख देना है लिविंग और जिसमें लिखना है नॉन लिविंग, और उसकी जिससे हम क्या है पढ़ने में हमें आसानी हो। In some cases it is easy for us to know. For example, we know that objects like chair or table are not alive. Paheli was reading this rhythm from Complete Nonsense written by Edward Lear. और पहेली नीचे एक टेबल पढ़ रही है जिसमें said the table to the chair, you can hardly be aware. Now I suffer from the heat and from क्या है chilblain on my feet. If we took a little walk. और ये पढ़ रही है तो उसको थोड़ा सा लग रहा है कि चेयर्स भी हैं, अलाइव है, लेकिन ये सब क्या है पोएम्स में रहता है, ऐसा रियल में नहीं है। Paheli and Bozo found the poem very funny because they know that a chair and table is not alive and it cannot talk and walk. ये हम भी जानते हैं कि चेयर और जो हमारे हो गए टेबल से सभी ना तो बात कर सकते हैं ना कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए उन्हें अलाइव कहते हैं। Chair and table, stone and coins are not alive. Similarly, we do know that we are alive, so are all the people of the world. We also see animals around us that are so full of life: dog, cats, monkeys, squirrels, insects and many other. How do we know that something is living? अब हम कैसे जानते हैं कि वो living है या non living है? Often it is not so easy to decide. We are told that plants are living, but they do not move like a dog or a pigeon. On the other hand, a car or a bus can move still. We consider them as non-living. Plants and animals appear to grow in size with time, but then at time clouds in the sky also seems to be grow in size. Does it mean that clouds are living? No. So how does one discuss between? अब हमें बात करना है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि लिविंग है या कुछ नॉन लिविंग है। या तो वो उसकी साइज के हिसाब से बात करेंगे या उसका शेप वगैरह कैसा है, तो हम आगे और ही पढ़ेंगे कि वो लिविंग है, सजीव है या फिर नहीं है। Do living things have some common characteristics that make them very different from non-living? और क्या ऐसा है कि
जो लिविंग थिंग्स है उनकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं या फिर उनकी अलग फीचर्स रहती हैं जो लिविंग से और नॉन लिविंग दोनों को अलग करती हैं। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग, मतलब हम जो है ह्यूमन जितने भी हैं वर्ल्ड में वो सभी एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है लिविंग बीइंग का। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग। What characteristics do you have while which make you different from a non-living things, मतलब हमें क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें दूसरी चीजों से अलग बनाती हैं, हमें उनकी लिस्ट बनाना है। लिस्ट a few of them characteristics in your notebook। Look at your list and mark those characteristics that you have listed, which may also be found in animals and plants। तो एनिमल्स में भी जो हो कुछ देख सकते हैं, जैसे हाइट का बढ़ना, ये सब हम प्लांट्स में भी देख सकते हैं। Some of these characteristics are perhaps common to living things। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ चीजें जो हैं वो कॉमन रहती हैं। तो वही बात हम फिर हिंदी में करते हैं। हमारे आसपास के जीव। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों एवं जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाली वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं, आइए वन में पाए जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। विषय आरोही लता और ये कुछ चीजें जो इसमें दी हुई हैं, इन सभी में हमें पता करना है कि कौन से सजीव हैं और कौन से निर्जीव हैं। ये सब एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए, उन्हें निर्जीव और सजीव समूह में बांटिए। कुछ प्रकरणों के हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरणतः हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव हैं। पहली एडवर्ड डियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही है, जिसमें एक दी हुई है इसमें कहानी, इसमें मेज और कुर्सी से बात कर रही है। तो उसके बाद पहेली और बोझों को एक कविता बहुत मजेदार लगी क्योंकि वे जानते हैं कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः ये ना तो चल सकते हैं और ना बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार और बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसा आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव है? नहीं, वो सजीव नहीं है। आखिरकार हम निर्जीव और सजीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे? मतलब कुछ ऐसे विशेष कारण हैं जिनके कारण हम बता पाएंगे कि ये सजीव है या निर्जीव है। आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण हैं। आप में से ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए और अपनी बनाई हुई सूची को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं अथवा पौधे में पाए जाते हैं। संभवतः इसमें से कुछ लक्षण सजीव वस्तुओं के में समान होंगे और हमें एक ऐसा कॉलम बनाना है, लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हम जो कार्य करते हैं वो क्या और बाकी लोगों में होते हैं या बाकी सजीव चीजों में होती है, उसकी हमें सूची बनाना है। आगे बात करते हैं, डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? क्या सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत पड़ती है? इन चैप्टर 1 and 2 we learned that all living things need food and how essential is animals to us.
We have also learned that plant make their own food by process of photosynthesis, और हमने आगे भी जाना कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट है जो फूड बनाते हैं, और एनिमल्स के लिए फूड बहुत आवश्यक है सरवाइव करने के लिए। एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, और हमने जाना था कि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे भी अपने भोजन के लिए आवश्यक होते हैं और उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म दैट एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। ऑर्गेनिज्म आल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। और जो फूड की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जो शरीर को एनर्जी देता है और जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बॉडी का, इसलिए फूड की जरूरत होती है एनिमल्स। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, और क्या सभी ग्रोथ शो करते हैं। डज द कुर्ता यू हैव 4 years back still fit to you? You cannot wear it anymore, मतलब जो पुरानी चीजें हैं, क्या पुराने वस्त्र आपको, क्लॉथ्स हैं, पुराना कुर्ता आपने पहन 4 साल पुराना, क्या आप उसको पहन पाएंगे? नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में ग्रोथ हो चुकी है। You must have grown taller during these days. You may not realize it, but you are growing all the time, and in few more years you will become an adult. और हम जैसे आगे इसमें बताए हैं ग्रोथ, बच्चे से बड़े होके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। Young ones of animal also grow into adults. You would surely notice pup grown into adults, और आपने चिक्स देखे होंगे जिसमें छोटे से उससे पप से ग्रो होता है। A chick hatched from an egg grow into a hen or cock. एक छोटे से अंडे से फिर धीरे धीरे बढ़ के hen या फिर कॉक बन जाता है। Plant also grow. Look around you and see a few plants of the particular type. Some are very small and young, some are bigger. They may all be in different stage of growth. Look at the plant after a few days and week. You may find that some of them have grown in size. वो जो plants हैं वो भी grow करते हैं, आसपास आप देखेंगे कि उनकी साइज में भी ग्रोथ हुई है। आगे बढ़ते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, क्या सभी सांस लेते हैं, ये हमें बात करना है। कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग, क्या हम बिना सांस के रह सकते हैं? चाहे तो आप कोशिश करते हैं, नाक बंद करके थोड़ी देर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि आप रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अवर बॉडी, जब हम सांस लेते हैं तो सांस हमारे अंदर बाहर से अंदर जाती है। व्हेन वी ब्रेथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड अवर बॉडी, और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो बाहर जो अंदर वाली हवा है वो बाहर निकलती है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, जो सांस लेना ये है एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रेथ इन एंड इज यूज्ड बाय आवर बॉडी, वी ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और हम इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। The process of breathing in animals like cow, buffalo, dogs and cat is similar to humans, और बाकी इन सभी जानवरों में भी ये प्रोसेस कॉमन है सांस लेने वाली। इसमें गाय, भेड़, बकरी, कैट्स, इन सभी में। Observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen. This shallow movement indicates they are breathing। और कई बार देखते हैं ऊपर नीचे उनका होता रहता है जो पेट है, तो वो बताता है कि वो ब्रीथिंग प्रोसेस कर रहे हैं। Respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. रेस्पिरेशन क्या है? सभी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। जो एनर्जी हम फूड से लेते हैं वो भी उसको फाइनली हमें एनर्जी मिलती है।
Some animals may have different mechanisms for the exchange of gases, which is the part of respiration process. और respiration process में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। इसका मतलब गैसेस का आदान प्रदान हो रहा है, तो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसके लिए हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग जो मैकेनिज्म है प्रेजेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म ब्रेथ थ्रू द स्किन, जो अर्थवर्म है वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। फिश के पास क्या रहते हैं, गिल्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म ब्रेथ थ्रू देयर स्किन, फिश वी हैव लर्न्ड have gills using the oxygen dissolved in the water. The gills absorb oxygen from air dissolved in the water. और वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, फिश जो हो गए जो पानी के अंदर जानते हैं पानी का फॉर्मूला, इसमें ऑक्सीजन भी रहती है और हाइड्रोजन भी रहती है, तो उस ऑक्सीजन को वो ले लेती है गिल्स के द्वारा, जो गिल्स उसको ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। Do plants also respire? Exchange of gases in plant mainly takes place through leaves, और leaves में भी जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहाँ पर वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। The leaves takes in air through tiny pores in them and use the oxygen. They give out carbon dioxide to the air, और उसमें जो leaves हैं वो बहुत बड़ा काम करते हैं गैसेस एक्सचेंज करने में। We learned that in sunlight plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. The amount of oxygen releases in the process of food preparation by the plants is much more than the oxygen they use in respiration. Respiration in plant takes place day and night. जो respiration है वो plants में दिन में भी और रात में भी दोनों में होता रहता है। और यहाँ पर आगे बात की है, the amount of oxygen released in the process of food preparation by the plant is much more than the oxygen they use in the respiration. और जो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहती है जो उनके रेस्पिरेशन प्रोसेस में बनती है, मतलब उससे बनने से ज़्यादा वो रिलीज कर देते हैं। और आगे हम बात करें, do all organisms respond to stimuli? How do you respond if you suddenly step on a sharp object like a thorn while walking barefoot? How do you feel when you see or think about your favorite food? You suddenly move from a dark place into bright sunlight. What happened? Your eyes shut themselves automatically for a moment till they are just changes bright. ओके, की बारे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप धूप में रहेंगे और यदि आप कमरे के अंदर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखें जो हैं थोड़ा सा टाइम लेगी, उसके बाद फिर वो एडजस्ट कर पाएंगी, तो फिर आप आसानी से देख पाएंगे। Your favorite food and bright light and a thorn in above situation are some example changes in your surrounding. All of us respond immediately to such changes. Changes in our surrounding that makes us respond to them are called stimuli. मतलब हमारे आसपास जो चेंजेस रहते हैं और हम उस चेंजेस को जब एक्शन करते हैं तब उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। Do other animals also respond to a stimuli? Observe the behaviors of animal when food is served to them. Do you find them suddenly becoming active on seeing the food? कई बार देखा होगा जानवर जो है घर पे रहते हैं, गाय भैंस वगैरह, उनको यदि आप चारा वगैरह डालने जाते हैं तो बहुत जल्दी वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं खाने के लिए। When you move toward a bird, what does it do? Wild animals run away when bright light is flashed toward them. Similarly, cockroaches begin to move their hiding place if the light in the kitchen is switched on the night. Can you give more example or response of? और बहुत सारे एनिमल हैं जो तुरंत एक्शन देते हैं, मतलब उनके आसपास की जो सराउंडिंग चेंज होती है तब, जैसे आप किचन में देखेंगे ज्यादातर कई बार कॉकरोच रहते हैं
तो आप अंधेरे में तो वो रहते हैं आराम से, और जैसे आप लाइट चालू करेंगे इधर उधर भागने लगते हैं। Do plants also respond to stimuli? Flowers of some plants blooms only at night. In some plants, flower closes after the sunset. ओके कि फ्लावर जो है वो रात में भी खिलते हैं। कई बार जो फ्लावर हैं जो जैसे सनसेट होता है वैसे वो अपना सिकुड़ जाते हैं। In some plants like Mimosa, commonly known as touch me not, और आपने देखा होगा लोकल लैंग्वेज में उसको छुई मुई बोलते हैं। जैसे ही आप टच करेंगे वो एकदम सिकुड़ जाती, पहले से फैली रहती है, तो उसका नाम है टच मी नॉट। लीफ क्लोजेस और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम। दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ रिस्पांस अ प्लांट टुवर्ड चेंजेस देयर सराउंडिंग। और ये आप छुई मुई का जो प्लांट है वो कहीं मतलब बहुत कम एरिया में आप और उससे देखेंगे, जैसे आप टच करते हैं उसकी पूरी पत्तियां जैसे आप छूते जाते हैं और वो सिकुड़ जाती हैं। आप चाहें तो आसपास देख सकते हैं कि रेयरली कहीं कहीं मिल जाता है, ऐसे नहीं मिल पाता है। हिंदी में बात करें, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? अध्याय 1 एवं 2 में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों और अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि और के लिए आवश्यक होता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जो भोजन है हाँ वो सभी सजीवों के लिए जरूरत रहता है, क्योंकि वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है और उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी रहता है, मतलब जिससे उनके शरीर का विकास होता है। क्या सभी सजीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? नहीं, कई बार आपने देखा होगा पुराने जो कपड़े हैं वो आपको फिट नहीं आते, क्योंकि आपके शरीर ग्रो हो चुका है। इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है। कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे और हम बड़े हो जाएंगे, हमें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली पता चलने लगता है। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा भी का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी या मुर्गा में परिवर्तन हो जाता है। और ये चेंजेस आप आसपास देख सकते हैं, जहाँ पे फॉर्म्स वगैरह रहते हैं मुर्गी वगैरह, ये चेंजेस आप देख सकते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। जो पौधे भी वृद्धि करते हैं। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह के बाद पौधे को देखिए, आप देखेंगे उनकी लंबाई। और कभी आप देख सकते हैं जो छोटे से पौधे को आप लीजिए और उसको आप अच्छे डेली से पानी वानी अच्छे से सनलाइट वगैरह मिलती रहे, तो कुछ समय बाद देखेंगे उसकी हाइट भी बढ़ गई है। क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? हमें देखना है कि क्या सभी जो सजीव हैं वो सांस लेते हैं या नहीं लेते हैं। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम बिना सांस लिए बिल्कुल भी नहीं जीवित रह सकते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर की अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है, और इस प्रक्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा निष्कासित कर देते हैं। ऐसा बताया है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें से कुछ भाग हम शरीर में हमारे रह जाती है, उसके बाद और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकाल दी जाती है। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए, और आप यदि चाहें तो जो ये गाय भैंस वगैरह आपके आसपास हो तो आप देख सकते हैं कि वो जो बैठे रहेंगे
तब इस श्वसन की प्रक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया करते रहते हैं। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और जो हम भोजन लेते हैं, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तभी हमारे शरीर को एनर्जी मिल पाती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान करने का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ द्वारा सांस लेना, मतलब जो केंचुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जो है वो सांस लेने के लिए एक ही चीजों का उपयोग करें। कई बार सभी अलग अलग, जैसे केंचुए का उदाहरण दिया। और मछली के लिए, मछली में क्या है, गिल्स पाए जाते हैं, जिससे पानी में जो पाई जाती है, जल में जो पाई जाने वाली ऑक्सीजन है, उसके द्वारा वो सांस लेते हैं। क्या पौधों में भी श्वसन करते हैं? पौधे की श्वसन प्रक्रिया, गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां जो है खाना भी बनाते हैं, और जो ट्रांसपिरेशन, सांस लेने की जो श्वसन की प्रक्रिया है वो पत्तियों में होती है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु से निष्कासित कर देती हैं। जो पत्तियां हैं उसकी, वो कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देती हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमें तो ये पता है कि पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा उपयोगी रहती है। श्वसन क्रिया दिन रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। डेली जो है रात में भी और दिन में भी दोनों टाइम एक जैसी श्वसन क्रिया उनकी चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत कम रहती है। मतलब जो खाना बनाने की प्रोसेस, उनकी भोजन की बनाने की जो रहती है पौधों में, उसमें ऑक्सीजन बहुत कम लगती है और ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देते हैं। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जब आप नंगे पैर टहल रहे हो, आपका पैर अचानक ही किसी कांटे या नुकीले पत्थर में पड़ जाता है, तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? मतलब कभी भी जैसे आप नॉर्मली ऐसे घूम रहे हैं कहीं भी और कांटे पे यदि आपका पैर आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है वो बताना है। जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं तो उसके विषय में सोचते हैं और क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे में अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही किसी क्षण के लिए बंद हो जाती हैं तथा वे तेज प्रकाश की अभेद नहीं हो जाती हैं। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं कांटों उपयुक्त में आपको वाह वातावरण में होने वाले परिवर्तन के उदाहरण। इन सभी प्रकार के परिवर्तन की प्रति अनुक्रिया करते होने वातावरण में इन परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। मतलब हमारा शरीर जो है आसपास यदि जो भी चेंजेस होता है उसके प्रति जो भी प्रतिक्रिया कर रहा है, मतलब चेंजेस अपने बॉडी में हो रहे हैं, तो उसको हम उद्दीपन बोलते हैं। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? अब हमें बात करना है कि बाकी, ये तो ह्यूमंस की बात हो गई, क्या बाकी उसमें बाकी जानवरों में भी ये सब होता है? क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य हो जाते हैं? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार की रात्रि में आप रसोई घर पर प्रदीप्त करते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। और भी बहुत सारे जो जानवर हैं वो भी, उनमें भी ये उद्दीपन की क्रिया होती है। क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? कुछ पौधे के पुष्प केवल रात्रि में, और ऐसा भी होता है कुछ जो पौधे रहते हैं उनके जो फूल हैं वो रात को ही खिलते हैं, कुछ के फूल जो है वो दिन में खिलते हैं। और जैसे एक प्लांट है जिसका नाम है छुई मुई या गुल मेहंदी के, उसको आप छुएंगे पौधों को तो वो सिकुड़ जाते हैं। ये उनका भी रिएक्शन है जिसको हम उद्दीपन कहते हैं। क्रियाकलाप 4,
एक्टिविटी 4 से हम बात करते हैं। प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम एंड लिटिल अवे फ्रॉम विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर्स टाइम ड्यूरिंग, और ये आप ऐसे कर सकते हैं जिसमें पास में एक खिड़की है, वहां पर एक प्लांट रख सकते हैं। Continue watering the plant for a few days. Does the plant grow upright like